Hello, my dear students and learners. Today we are going to discuss the chapter 12 of Indian economics, that is, environment and sustainable development. So, in this chapter, we are going to learn about the concepts which are given on your screen. The topics are the concept of environment, and then we will study about the significance and the function of environment, and then we will discuss about the two basic problem related to the environment. First one, the problem of pollution as we know about it, and the second one, the problem of excessive exploitation. The first topic of this chapter is the concept of environment. So what does environment include? Environment के अंदर क्या include होता है? Things around us, for example, the water, air, land, and their interrelationship. So environment include the air, water, and land. These are the physical resources. Okay, so environment में जो हमें अपने आसपास में फिजिकल रिसोर्स मिलते हैं जैसे कि वाटर, एयर एंड लैंड, और इन सब की जो इंटर रिलेशनशिप होती है, ठीक, जैसे कि जो लैंड है वो डिपेंड है कहीं ना कहीं एयर पर है और वाटर पर डिपेंड है, ठीक, तभी तो हम एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से इनकी जो इंटर रिलेशनशिप है ना, कि ये एक दूसरे पर क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है ना। तो ये सभी चीज़ें आपस में मिला के किसका पार्ट बनती है, इन्वायरमेंट का पार्ट बनती है। ओके, सो द डेफिनेशन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, द इन्वायरमेंट इंक्लूड द एयर, वाटर and the land and their interrelationship that existed among between the air, water and the land and the human being and other creature, plants, microorganisms and property। ठीक, तो इन सब की जो देखिए मैंने कुछ बताया कि कुछ फिजिकल रिसोर्सेज हैं। फिजिकल रिसोर्स में मैंने बताया आपको वाटर है, एयर है एंड लैंड है, ठीक। अदर देन दैट देयर आर सम बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग आते हैं, ठीक, प्लांट्स आते हैं, क्रीचर्स आते हैं। तो इन सब का आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है वो हम कहाँ देख पाते हैं, वो हम अपने सराउंडिंग्स में देख पाते हैं। और ये सब सम टोटल कंडीशंस जो हैं इसको हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों, इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, सो एज पर द डेफिनेशन गिवन according to Environment Protection Act 1986, it suggests us that there are two elements of environment. First one is the abiotic, which is the physical factors, and the second one is biotic, that is the living elements or living factors. So first of all, let us talking about this abiotic factors. Abiotic, we can say the elements. So the physical elements like the land, the water, air, soil, climate, mountains, minerals, these all are the physical factors and these are abiotic factors. Okay, so they do not have life, that is why they are abiotic factors, and these physical factors are the free gift of nature, okay, which is given to us by the nature. Okay, and then we have this living element. So the living elements are the biotic elements which include all kinds of living creatures like the plants, animals, which impact the human life. Okay, now the next topic is the significance of like the functions of environment. Okay, what are the functions of environment, what is the significance of environment? ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इन्वायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि हमें जो भी प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो चाहिए, रॉ मटेरियल के फॉर्म में चाहिए, है ना, और भी कई फिजिकल फॉर्म में चाहिए। तो जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, those resources we got from the our mother earth, from our nature. So this include the mineral, wood, water, soil and other physical resources. Okay, these are available to us as a free gift of nature. ये हम हमारे पास अवेलेबल होता है क्योंकि हमारे पास ये हमें नेचर से मिलता है एज अ फ्री गिफ्ट। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे प्रोडक्शन में वर्क करते हैं एज एन इनपुट। ओके, एंड प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन सिंपली हम ये समझाएं तो एक प्रोसेस है। व्हाट इज़ प्रोडक्शन अगर मैं कहूँ तो प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसीजर और इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द रॉ मटेरियल converted into the useful goods. Okay, so it is a process by which
the raw material is converted into a useful good. For example, we have taken a piece of wood, and then when we converted that piece of wood into a useful furniture, so that is an example of production. So how do we do this production if we do not have the physical resources from our earth? Okay, so the first point is that we got our resources from our earth. So the next point is environment sustain life. So we human need sun, soil and water and air. So without these element human life cannot be existed. Okay, तो ये सारे फैक्टर्स बच्चों हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑल दीज फैक्टर वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट. ओके, दीज आर द असेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द सस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये सभी एक असेंशियल, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वाइटल एलिमेंट्स हैं, है ना, जो ह्यूमन लाइफ के सस्टेन के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट दीज एलिमेंट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके, सो लेट जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट. तो देखिए ऐसा है कि प्रोडक्शन भी करते हैं हम ह्यूमन बींग्स, है ना, और कंजम्पशन भी होता है. देखिए इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये दो एक्टिविटी हैं जिनकी वजह से वेस्ट जनरेट होता है, एक्टिवली वेस्ट जनरेट होता है. एंड वेयर डज इट गो? अब इतना सारा गार्बेज है, इतना सारा वेस्ट है, ये कहाँ जाता है? ये सभी जो वेस्ट है ये इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब करता है. अब सोचिए अगर आप कि इन्वायरमेंट इस इतने सारे वेस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये वेस्ट कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ रहेंगे? ओके, तो जो दूसरा फंक्शन है इन्वायरमेंट का वो ये है कि इन्वायरमेंट वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, एसिमुलेट करता है वेस्ट को. The next point is environment enhance the quality of life. So we know that there are so many things which are given by our mother earth to us. For example, the river, oceans, mountains, desert, and all these things adding quality of our life, quality to our life. For example, अगर देखिए हमें वेकेशन पे जाना होता है, ठीक है, तो हम कहाँ जाते हैं? माउंटेन्स पे जाते हैं अपने वेकेशंस में, है ना, तो हम वहाँ पर क्या है, इन्जॉय करते हैं. तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जैसे कि हम माउंटेन्स पे जाना चाहते हैं या डेजर्ट में जाते हैं इन्जॉय करने, या ओशियंस या रिवर, कहीं भी जाते हैं हम लोग इन्जॉय करने, तो ये सभी फैक्टर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? इन्वायरमेंट से मिलते हैं. सो वी कैन से दैट द इन्वायरमेंट एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके, now the next topic is the two basic problem related to the environment. Now what are the two problems related to the environment? The first one is the problem of pollution, and the second one is the problem of excessive exploitation of natural resource, or we can say the degradation of natural resources. So let's just first discuss our topic which is called pollution. सो देखिए पॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है? देखिए पॉल्यूशन का यहाँ पर मीनिंग है कि देखिए हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे फिज़िकल फैक्टर हैं. अब जब वो फिज़िकल फैक्टर अपनी प्योरिटी लॉस्ट कर देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो जाते हैं. अब जैसे वाटर है, अब वाटर के अंदर आप अपनी नेचुरल फॉर्म में जो वाटर है, अब उसके अंदर आप कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जब when water lost its purity it become polluted. And so according to the book, pollution refers to all those activities of production and consumption which challenge the purity of land and water and thereby pollute the environment. So pollution उन सभी एक्टिविटी की वजह से होता है जिन एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं. तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब एयर एंड वाटर अपनी प्योरिटी लॉस करता है ना, तो हम ये कहते हैं कि द एनवायरनमेंट गॉट पॉल्यूटेड एंड इट इज़ अ सीरियस and emerging challenges related to the process of growth, particularly related to the process of industrialization. देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की और प्रोसेस ऑफ ग्रोथ की, लेकिन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कीमत है वो हमें चुकानी पड़ती है किसके फॉर्म में? पॉल्यूशन के फॉर्म में. ठीक, तो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स एंड सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री
तो दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एनहेंस करते हैं, जिसके लिए हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं काफ़ी सारी। तो ये सारे हम जो प्रोसीजर करते हैं प्रोडक्शन के एंड कंजम्पशन के भी, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता है। दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। ओके, व्हेन व्हेन द नेचुरल एलिमेंट्स जस्ट लाइक द एयर, वाटर एंड सॉइल लॉस्ट इज प्योरिटी due to the human activity of production and maybe consumption. Okay, that is a procedure, that is the, we can say, concept of pollution. Okay, so our pollution have three forms. The first one is the air pollution, the water pollution, and the noise pollution. So according to our syllabus we need to understand only these three types of pollution. Now let us discuss about the air pollution. What is air pollution? So when air carries oxygen, and we know that the oxygen is a vital element or the essential element for the human life, and the pollution of air implies the pollution of an essential element of life. So जैसे कि बच्चों हमें पता है कि जो एयर है, एयर कैरीज ऑक्सीजन विद हिम। तो जो एयर है वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करती है, एंड वी नो दैट द ऑक्सीजन इज द असेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, सो व्हेन एयर गॉट पॉल्यूटेड, द ऑक्सीजन गॉट पॉल्यूटेड। ओके, so the quality of life, we can say, the compromised. Okay, because the purity of oxygen is now lost. We have lost the purity of oxygen. Okay, and we have this problem of we breathing and other problem we also faced. Okay, the people may develop the different kind of diseases due to this pollution, and air pollution. And we can simply say that the quality of life is compromised. Okay, now the we need to understand what cause the pollution of air. Okay, कैसे pollution होता है air का? So air pollution occur owing to the presence of the pollutants in the air. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था pollution का मीनिंग कि जब when the physical element, the element which we receive from our mother earth, get polluted when it lost its purity. तो यहाँ पर यही है कि जब एयर अपनी प्योरिटी को लॉस्ट करता है और उसके अंदर कुछ पॉइजनस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मिक्स हो जाते हैं। डस्ट, पॉलिन एंड स्मोक, ओके, ये पार्ट बन जाते हैं किसका? एयर का। सो एयर गॉट पॉल्यूटेड बिकॉज नाउ द एयर लॉस्ट its purity. Okay, following factor contributed to the air pollution. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है? फर्स्ट वन, द स्मोक emitted by the industries, particular those using coal as a energy. देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो स्मोक एमिट होता है किसके द्वारा? इंडस्ट्रीज के द्वारा। और वो इंडस्ट्री जो पर्टिकुलरली एनर्जी लेने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कोल का यूज़ करते हैं। सो व्हेन वी यूजिंग द कोल, ओके, वी emit the smoke into the environment. The second point is that poisonous gases emitted particularly by the process of chemical treatment of the मटेरियल। देखिए यहाँ पर ये है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है, यानी लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये ना केमिकल ट्रीटमेंट करती हैं, है ना, मटेरियल पर, ताकि वो जो मटेरियल हैं उनको हम यूज़ कर पाएँ। जैसे कि जो लेदर की बेल्ट्स आती हैं, लेदर के प्रोडक्ट आते हैं, तो हम डायरेक्टली लेदर जो मिलता है हमें अपनी रॉ फॉर्म में, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो हमारे यूजेबल हो जाते हैं ना, वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो लेदर है वो आपका रॉ मटेरियल है और हम उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट उन पर करने पड़ते हैं। तो जो केमिकल ट्रीटमेंट जब होते हैं तो उनसे कुछ पॉइजनस गैस इवॉल्व होती हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन ये पॉइजनस गैस हमारे इन्वायरमेंट का अगर पार्ट बनती हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। ओके, सो दैट इज़ द सेकंड रीज़न। एंड द थर्ड रीज़न इज़ दैट, okay, the next important point is that the emission of gases by the motor vehicles. देखिए, we are using the motor vehicles, और जो number of motor vehicles हैं वो day by day increase होते जाते हैं, और ये अलार्मिंगली रेट तक इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब
आप खुद सोचिए कि अगर मोटर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा रोड पे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन होगा गैसेस का। और जब ये स्मोक और गैसेस हमारे डाइल्यूट हो जाएंगे, किसके साथ मिल जाएंगे, जब ये हमारे एयर के साथ मिल जाएंगे, ठीक, तो एयर की जो नेचुरल, हम ये कह सकते हैं कि जो प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और जब प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी एयर की, तो सीधा सा प्रोसेस पॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो पॉल्यूशन का जो तीसरा कारण है वो ये है कि मोटर व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, दैट इज द थर्ड पॉइंट। Okay, our next topic is the water pollution. So, just like air, water is also the essential element of human life. Without water, the human life is not possible on Earth. So, when the water lost its purity, it become polluted. Okay, so the pollution of water relates to the contamination of water. Okay, when the impurities mixed with the pure water, the water become contaminated. Okay, it become polluted. So use of polluted or contaminated water leads to the diseases like diarrhea and hepatitis. ओके, तो जब हम पॉल्यूटेड वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ करते हैं तो बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं, जैसे डायरिया, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस, इस प्रकार की डिसीजेस स्प्रेड होती हैं। सो सो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, principal factor contributing to the water pollution in India. First one, the industrial waste, particularly those using the chemical as input streaming into the river. ओके, तो देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तब इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या है कि केमिकल जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, अब वो केमिकल को डिस्पोज कर दिया जाता है रिवर में, स्ट्रीम कर दिया जाता है रिवर में, तो द वाटर लॉस्ट इट्स प्योरिटी एंड वाटर बिकम कंटेमिनेटेड। Okay, the next point is the domestic sewage that flow into the stream and river. तो जो डोमेस्टिक सीवेज है ना, उसको भी डिस्पोज कर दिया जाता है सीधा सीधा स्ट्रीम में या फिर रिवर में या किसी वाटर बॉडी में। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्रीकल्चर रन ऑफ मिक्सड विद द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड दैट टर्न इनटू स्ट्रीम एंड रिवर। अब देखिए एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो हम आजकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, है ना, इनपुट अपना यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स को और इंसेक्टिसाइड्स को। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड असल में केमिकल्स हैं। ओके, तो जब वाटर फ्लो करता है कहाँ से, एग्रीकल्चर ग्राउंड से, और जब सेम वाटर मिक्स हो जाता है किसी स्ट्रीम के साथ में और रिवर के साथ में, है ना, उस वाटर में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स मिक्सड होते हैं, तो वो वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। तो ये भी एक सीरियस थ्रेट है। ओके, fourth point is the thermal power plant discharges ashes that mix with water। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो कोल को यूज़ करते हैं एनर्जी गेट करने के लिए, और जब कोल है ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस अगर ऐश को डिस्पोज कर दिया जाए वाटर में तो फिर से वाटर कंटेमिनेटेड है ना, और वाटर लॉस्ट इट्स प्योरिटी एंड वाटर बिकम पॉल्यूटेड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो थ्रेट to the human life because the water is polluted and then we'll use this polluted water, and there are so many diseases, spread due to this polluted water. So the third type of pollution we faced is the noise pollution. So देखिए नॉइज़ पोल्यूशन होने का कारण ये है कि मशीनें हम यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैकेनाइजेशन की वजह से लेवल ऑफ एफिशिएंसी हमारा वो है इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, सो इट रेज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, बट इट हैज़ इक्वली रेज द लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन यूज़ करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज़ होती है, लेकिन साथ ही साथ जो लेवल है नॉइज़ पोल्यूशन का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। द नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रिकॉर्डेड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ because millions of vehicles fitted with the loud horns and noise generating engines are plying on the road। देखिए, तो नॉइज़ जो पॉल्यूशन है उसका कारण ये है कि काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं जिनके अंदर हमें हॉर्न्स फिट होते हैं, और जब ये हॉर्न्स और व्हीकल्स जो है मल्टीपल हो जाते हैं ना, तो ये
कम्यूलेटिव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा कई मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हॉर्न्स की जो लाउडनेस है वो मल्टीपल टाइम जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो नॉइज़ पॉल्यूशन जनरेट हो गई। इसके अलावा जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर इंजन्स होते हैं, उसकी वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है रोड्स पर। ओके, जो एक्सेसिव नॉइज़ होती हैं उसकी वजह से इरिटेशन और अननेसेसरी फटीग हमारी बॉडी और माइंड दोनों को फेस करना पड़ता है। यानी कि जब हम अतिरिक्त नॉइज़ फेस करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में इरिटेशन और फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान, तो दोनों ही हमारी बॉडी और माइंड दोनों को ही प्रभावित करते हैं। So accordingly, the quality of life distorts and the efficiency is reduced। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉट हो जाएगी अगर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो इफ़ेक्ट होते हैं, किसकी वजह से, नॉइज़ की वजह से। और हमारी जो वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है जो, वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूस्ड हो जाएगी। You may noted the following sources of noise pollution, and we already know the what are the sources of noise pollution, but let's just see these points according to our book. The first point is the sound produced by the machines used in the industries। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वो साउंड जो प्रोड्यूस होता है मशीन से, जो कि यूज़ होती हैं कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में। साउंड प्रोड्यूस बाय द कार, ट्रक्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। तो वो साउंड जो प्रोड्यूस होता है कार में, ट्रक में और बाकी के ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल में। साउंड प्रोड्यूस बाय द मशीन इन द कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो वो साउंड जो प्रोड्यूस होता है मशीन्स द्वारा कंस्ट्रक्शन के समय। तो ऑल दीज थिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, एंड वी ऑलरेडी नो दैट the noise pollution, the sound pollution is not good for our mind and body. Okay, as I already told you that there are two factors which can cause the problem to our environment. The first one is the pollution, okay, and we had discussed the pollutions. The second problem is excessive exploitation of natural resources, यानी कि natural resource का एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका क्या करना, प्रयोग करना, जिसकी वजह से उसका एक्सप्लोटेशन होता है, ठीक, शोषण होता है ना, एक्सेसिव यूज़ होता है। सो द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ environmental pollution relates to the excessive exploitation of natural resources or degradation of resources. Natural resources refers to forest, mineral, soil, etc. Natural resources are also called the natural capital। देखिए, जो दूसरा पहलू है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का, वो किससे रिलेट होता है, जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिवली एक्सप्लोटेशन करते हैं, एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्स। और यही कारण है डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्स का, यानी कि रिसोर्स का क्या होना, रिड्यूस्ड होना, दैट इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्स। सो द नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू द फॉरेस्ट, द मिनरल्स एंड द सॉइल। ओके, तो यहाँ पर माउंटेन वगैरह भी हम कह सकते हैं कि मिनरल जो हमें अर्थ से मिलते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्स है जो हमें अर्थ से मिलता है। सो ये सभी नेचुरल रिसोर्स का जब हम एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, अननेसेसरी यूज़ कर लेते हैं, है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, डिग्रेडेशन, रिडक्शन होता है रिसोर्स का। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल कैपिटल। नेचुरल रिसोर्स को नेचुरल कैपिटल भी कहा गया है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। तो अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम रीड करते हैं। फर्स्ट वन, in order to achieve the economic growth, man needs natural capital along with the physical capital। that is the first point। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, इकोनॉमिक ग्रोथ की, सो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होती है कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होती है ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी अगर हमारी इंक्रीज़ हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करते हैं, ठीक। और इन इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए हमें डेवलपमेंट अचीव करना है, और डेवलपमेंट हम तभी अचीव कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा और फिजिकल रिसोर्स होगा। सो वी नीड द नेचुरल रिसोर्स एज वेल एज द फिजिकल रिसोर्स टू एनहेंस आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। Okay, second point, as a result of increase in production there is a depreciation of both the physical capital and the natural capital। okay, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। देखिए, मैंने बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जीडीपी इंक्रीज करना, ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जो प्रोडक्ट वर्ड है उसका मतलब ही क्या है, प्रोडक्शन का। जब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर इनकम क्या होंगी, जनरेट होंगी, जिससे लोगों की रियल इनकम भी जनरेट होगी, है ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अचीव करेंगे। ठीक, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा किसका, फिजिकल रिसोर्स और हमारे नेचुरल रिसोर्स का। और ज़्यादा रिजल्ट, ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से दोनों का स्तर ही कम होता जाएगा, यानी कि फिजिकल कैपिटल का भी स्तर कम होगा और नेचुरल कैपिटल का भी स्तर कम होता जाएगा। Often, we make the provision for the replacement of the physical capital, both the depreciation, but the depreciation or the degradation of natural resource is oftenly ignored. ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें नेचुरल और फिजिकल रिसोर्स दोनों ही यूज़ करने हैं। ठीक, तो फिजिकल रिसोर्स यूज़ करते करते क्या है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, तो हम उनको रिप्लेस कर देते हैं, फिजिकल रिसोर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आज हमने एक मशीनरी परचेज की, उसकी लाइफ 2 ईयर्स थी और 1.5 ईयर के बाद हमें लगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, तो हम उसको इमीडिएटली क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे उस फिजिकल रिसोर्स को। ठीक, लेकिन बात करें नेचुरल रिसोर्स की, तो नेचुरल रिसोर्स हम यूज़ करते जाते हैं ना, वो समय के साथ डिग्रेडेट होता जाता है, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती जिसकी वजह से उसको क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक, और उसका जो रिप्लेसमेंट है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, सो लेट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ द process of deforestation and the degradation of land. Okay, for humans, deforestation can be seen as a boon, as it offers a variety of things to consume and enhance the quality of life. ओके, देखिए अगर मैं डिफॉरेस्टेशन को ह्यूमन बीइंग की व्यू से देखूंगा तो वो उसके लिए क्या है, एक वरदान की तरह है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा करते जाते हैं, नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते जाते हैं और हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हम अचीव करते हैं। ठीक, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट होंगे कंज्यूम करने के लिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली एनहेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो और ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगी, है ना, लग्जरीज ऑफ लाइफ ऐड हो जाएंगे इसमें, तो जो एनहेंस हो जाएगी क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो किस पर पड़ता है, डायरेक्टली नेचर पर पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए फिजिकल और नेचुरल रिसोर्स की आवश्यकता, और नेचुरल जो रिसोर्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, सो ये किस तरीके से होता है, ट्री आर फेल्ड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बाय द इंडस्ट्रीज़। अब देखिए होगा ये कि जो ट्री हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को गिराया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हमें वुड की डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, हम देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को एनहेंस करना। अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में हमें नेचुरल रिसोर्स भी चाहिए। अब जो नेचुरल रिसोर्स है वो पर्टिकुलरली कहाँ से मिलते हैं हमको, ट्री है ना, ट्री से हमें वुड मिल रही है, तो वो वुड क्या, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वुड के लिए ट्री को क्या कराएंगे, ट्री का हम यूज़ करेंगे, ट्री गिरेंगे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो जो हमारा एरिया है, जो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहले ट्री थे, जो जिस एरिया को हम फॉरेस्ट करते थे, फॉरेस्ट कहते थे, है ना, उसमें एफॉरेस्टेशन की जगह वो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज, तो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज, ओके, कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. So, industrialization lead to the urbanization, and urbanization induced deforestation. More and more forests are cleared for the development of township. Okay, this ये second point हमारा है. Second point के due according to the second point, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, उससे अर्बनाइजेशन होगा, है ना। तो जब अर्बनाइजेशन होगा तो यानी कि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जब शहर बसाए जाएंगे तो होगा क्या उससे बच्चों, उससे ये होगा कि द एरिया which is previously reserved for the forest, now that area will be used by the people to live,
है ना, वो एरिया लोग यूज़ करेंगे रहने के लिए, है ना। तो टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा उससे, और जो एरिया पहले जहाँ पर कभी क्या कहते हैं फॉरेस्ट हुआ करते थे, अब वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी हमारा डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर है ना। अब जैसे पता है आपको कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की। अब जब पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी तो लोगों को रहने के लिए जो जगह है वो कौन सी यूज़ की जाएगी, कौन सी अलॉट की जाएगी, वो स्पेस जो प्रीवियसली ऑक्यूपाइड किया जाता था फॉरेस्ट के द्वारा ऑब्वियसली। The third point is the multi-purpose river project like the Bhakra Dam or the Damodar Valley project are another factor contributing to the deforestation. अब देखिए यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के जो अगले पॉइंट हैं वो क्या है कि देखिए जब रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पर डेवलप होते हैं पर्टिकुलरली, तो जो रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो वो स्पेस कहाँ से आएगा, वो स्पेस के लिए भी वो एरिया जो है पर्टिकुलरली जहाँ पर कभी फॉरेस्ट रहा होगा उस एरिया को क्लियर किया जाएगा और पर्टिकुलर जगह पे वो प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा, है ना। जो रिवर प्रोजेक्ट जैसे भाखरा नाकल डैम है ना, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। उससे ह्यूमन बीइंग के लिए डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा रास्ते खुले हैं। वहाँ पे पर्टिकुलरली जो लोकल पीपल थे उनका भी डेवलपमेंट हुआ है। बट इसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो डेफिनेटली डिग्रेडेशन हमें उसका देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज द अनदर फैक्टर contributing to the deforestation. Okay, so dear student, that's it for this video, and we will discuss the remaining topic of this chapter in our next video.